السلام علیکم جماعت اول کے پیارے پیارے بچوں. میں ہوں آپ کی ٹیچر مس عروج فاطمہ اور میں آپ کو پڑھانے والی ہوں اردو. سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھائیے دعا کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اردو کی جو بک ہم آج پڑھنے والے ہیں وہ ہے کاشف اردو. اور کاشف اردو کا صفحہ نمبر ہم نکالیں گے 13. صفحہ نمبر 13 میں سوال دیا گیا ہے کہ لفظ پڑھیے اور تصویر بنائیے. لفظ پہلا دیا گیا ہے ڈول. ڈال واؤ ڈو لام ساکن ڈول. اب ڈفرنٹ مختلف قسم کے لفظ دیے گئے ہیں. ہم نے ان کے سامنے ان کی تصویر بنانی ہے. جیسا کہ میں نے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے ڈول کی. آپ نے کیا کرنا ہے, اسی طرح کا ڈول اس ڈبے کے اندر بنانا ہے اور اس میں رنگ بھرنا ہے. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس دن. دن دال زیر نون ساکن دن. اب ہم نے کیا کرنا ہے, دن کی تصویر بنانی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دن کی یہاں پہ میں نے تصویر بنائی ہوئی ہے. آپ نے ایسی ہی تصویر دن کی بنانی ہے اس ڈبے کے اندر اور اس پہ رنگ بھرنا ہے. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس رات. رے الف را تے ساکن رات. رات کی تصویر بھی آپ کو دی گئی ہے. آپ نے اسی کو دیکھ کے ایک اچھی سی تصویر بنانی ہے اور اس میں رنگ بھرنا ہے. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ڈال واؤ ڈو رے ساکن ڈور. جی بالکل. اب آپ نے اسی تصویر کو دیکھ کے اپنے بک کے اندر, اپنی کتاب کے اندر وہ تصویر بنانی ہے. اب ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 14. صفحہ نمبر 14 پہ دیا گیا ہے کہ بے کو الف کے ساتھ لکھیں. ہم بے کو الف کے ساتھ لکھنا سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی آواز کیا بنتی ہے. سب سے پہلے ہم نے پچھلے سبقوں میں کیا پڑھا تھا کہ بے کے اوپر زبر لگائیں تو ب کی آواز بنتی ہے. اگر بے کے ساتھ ہم الف لگائیں گے تو با کی آواز بنے گی. تھوڑی سی آواز بڑھے گی, زیادہ ہوگی. بے الف با. بے کی آدھی شکل دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے, الف. بے الف با. بے الف با. بے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے اور الف کو ڈیش کے ساتھ لکھا گیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان کی ٹریسنگ کرنی ہے اور بے الف کیا لکھنا ہے, با. اور اس کو پڑھنا بھی ہے بے الف با. اچھا, بے الف با کے الفاظ سیکھیے, پڑھیے اور لکھیے. بے الف با سے کون کون سے الفاظ بنتے ہیں؟ بے الف با لام الف لا بالا. بے الف با غین ساکن باغ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ باغ دیا گیا ہے اور باغ میں بچے کھیل رہے ہیں. باغ میں کیا ہوتے ہیں, درخت ہوتے ہیں, کھیلنے کی جگہ ہوتی ہے اور یہاں پہ تالاب بھی ہے. تو باغ کسے کہتے ہیں, جہاں پہ ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ ہو اور وہاں پہ بچے کھیلیں, وہاں پہ خوشی کا احساس ہو, اسے کہتے ہیں باغ. اور بے الف با سے کون سے الفاظ بنتے ہیں؟ بے الف با جیم الف جا باجا. باجا بھی بنتا ہے بے الف با سے. اسی طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ بے الف با سے اور کون کون سے الفاظ بنتے ہیں. بے الف با بابا. ہم کسی بھی بوڑھے شخص کو بلاتے ہیں بابا جی کہہ کر, تو وہ بھی بے الف با سے ہی بنتا ہے. مزید کون سے الفاظ بن سکتے ہیں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں. مزید الفاظ نیچے اور بھی دیے گئے ہیں. بے الف با زے الف دا رے ساکن بازار. بے الف با لام ساکن بال. بے الف با رے چھوٹی ہے ری باری. بے الف با تے ساکن بات. بے الف با پے ساکن باب. بے الف با دال الف دا
اور नीन साकिन बादाम। मेरे जहन में एक और भी लफ्ज आ रहा है, बेअलिफ बा, रे और शीन, बारिश। बेअलिफ बा, रे जेर री और शीन साकिन बारिश। इस तरह के और भी बहुत से लफ्ज आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इसकी मशक पूरी करनी है। और जो अल्फाज पढ़िए वाला सवाल है, ये सारे अल्फाज आपने कॉपी पर उतारने हैं, कॉपी पर लिखने हैं। और मजीद भी आपके जहन में अल्फाज आए एक दो तो आप जरूर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सफ़े पर। जुमले पूरे कीजिए। सफ़ा नंबर 15 में हम क्या करेंगे, जुमलों को पूरा करेंगे, जुमला साथी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से अल्फाज डालें, इनके साथ लिखें तो जुमले पूरे हो सकते हैं। बाबा आम दो, दाल वाव दो डालेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ। आम दो, बाबा ये आम है, बाबा आज आम ला दो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जुमला साथी। आपके जहन में और भी कोई अल्फाज आते हैं इसके अलावा, आम की जगह आप आड़ू भी लिख सकते हैं, कोई भी लफ्ज लिख सकते हैं, कोई भी चीज लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये खुद सोचना है कि कौन सा लफ्ज इस पर और अच्छा लगेगा और बेहतर लग सकता है। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी, बाबा वो बादाम दो। अगला जुमला है हमारे पास, बाबा ये आड़ू दो। आपने पिछले सबकों में मुख्तलिफ अल्फाज ज़बर, ज़ेर और पेश के साथ भी पढ़े हैं और अलिफ मदाद से शुरू होने वाले अल्फाज भी पढ़े हैं। आप इसमें कोई भी लफ्ज जो आपने सीखा है पिछले सबकों से वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी आपके जहन में है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमले पढ़िए और लिखिए। अगली मशक हमारी है, ये बाबा है। अब आपने ये बाबा है, ये जुमला आगे खाली जगह पे लिखना है ताकि आप इसकी आपकी प्रैक्टिस हो, आपकी मजीद लिखाई अच्छी हो और आप इन जुमलों को याद कर सकें और आप इन जुमलों को मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल भी कर सकें। बाबा ये आम है, बादल आया, बारिश है। ये वो अल्फाज हैं जिनमें ज्यादातर बेअलिफ बा से शुरू होने वाले अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं और कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जो अलिफ मद आ से शुरू हो रहे हैं। तो ये वो अल्फाज हैं जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब आपसे गुजारिश है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें और कॉपी पर प्रैक्टिस करें ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें। वापस है अगला सफ़ा नंबर 16। पहले हमने लफ्ज पढ़ा बे को अलिफ के साथ। बे को अलिफ के साथ क्या हमारी आवाज बनती है, बा। लेकिन अगर हम बे को वाव के साथ पढ़ें तो आवाज बनती है वो, बे वाव वो। बे की आधी शक्ल दी गई है और इसके साथ हम वाव लगाएंगे तो आवाज बनेगी वो, बे वाव वो, लाम साकिन बोल, बे वाव वो, रे छोटी है री, बोरी। हमने जबर, जेर और पेश वाले अल्फाज पढ़े, उनकी आवाज कम ऊंची होती थी, हम जरा कम ऊंचा पढ़ते थे। लेकिन जब हम अलिफ, वाव या छोटी बड़ी लगाएंगे तो थोड़ी सी आवाज को बढ़ाएंगे। बेवाव वो, बेअलिफ बा। और बेवाव वो से कौन से अल्फाज बन सकते हैं, बेवाव रे और डाल, बोर्ड। इसको हम क्या कहेंगे, बोर्ड। बे पेश वाव बू, टे साकिन बूट। अब इससे और भी अल्फाज बन सकते हैं। इन अल्फाज को आपने कॉपी पर लिखना है ताकि आपकी इनसे प्रैक्टिस हो सके, मश्क हो सके आपकी।
बे वाव बो, ऊपर वाली मश्क में आपने क्या करना है, बे वाव बो लिखना है, वाव साथ लगाना है आधी शक्ल के और साथ में बे वाव बो भी डैश में लिखना है। अगला हमारे पास मश्क है कि जुमले पढ़िए और लिखिए। ये बोरा है, बोरा किसे कहेंगे, किसी थैली को हम, जो बहुत बड़ी थैली होती है, अमूमन हम आटे की बोरी को भी बोरा कहते हैं। तो ये बोरा है, ये जुमला आपने खाली जगह पे लिखना है। बोरी दो, बाबा बोल। अब ये जो जुमला है इसमें बे अलिफ बा से शुरू होने वाला लफ्ज भी है और बे वाव बो से शुरू होने वाला लफ्ज भी है। वो बोर्ड है, बोर्ड किसे कहते हैं, जिस पर हम खुशखती से लिखते हैं, कुछ भी लिखना चाहें बोर्ड मार्कर से, तो ये बे वाव बो से शुरू होने वाले लफ्ज है। और भी आपके जहन में कोई बे वाव बो से शुरू होने वाले लफ्ज हो तो आप कॉपी पर लिख सकते हैं। इन अल्फाज को जो लिखे हुए हैं आपने 2-2 दफा लिखना है और बे वाव बो भी आपने इसकी मश्क करनी है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। आज के लिए हमारे पास इतना ही है और आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि हम लफ्ज को पढ़ के उनकी तस्वीर कशी कैसे कर सकते हैं, और हमने पढ़ा है कि बे अलिफ बा से शुरू होने वाला लफ्ज कैसे लिखे जा सकते हैं और उनसे कौन कौन से लफ्ज और बनते हैं, और इन लफ्जों को आपने कॉपी पर लिखना है। मजीद हमने जुमले पूरे किए, जुमले, खाली जुमले जो भी आप सोच सकते हैं, ये तो टीचर ने लिखा है, लेकिन आप कोई और भी लफ्ज बे अलिफ बा से या अलिफ मदा से शुरू होने वाले लफ्ज या अलिफ से भी शुरू होने वाले लफ्ज लिख सकते हैं, कोई भी ऐसे अल्फाज। और हमने बे वाव बो से शुरू होने वाले लफ्ज लिखे हैं और उनकी मश्क की है। आज के लिए हमारे पास इतना ही है, मजीद हम अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।